हाय एवरीबॉडी। हम लोग करेंगे एनटीए का सेकंड टाइम जो मॉक उन्होंने अपलोड किया है उसको करेंगे सॉल्व। मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा देखा। क्वेश्चंस काफी कुछ पिछले वाले मॉक टेस्ट से ही सिमिलर है। उन्होंने थोड़े से करेक्शंस करे हैं पेपर के अंदर, बट स्टिल करेक्शंस अभी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस लगे कि अभी भी गलत है, एक दो क्वेश्चंस लगे कि जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस भी लगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का मॉक। First, progressive income taxation is a way to achieve which objective of the government budget? Allocation function, redistribution function, stabilization, managing public enterprises. Now, progressive income taxes, as your income increases, your tax also increases. That means that tax amount will be taken and will be redistributed among the poor section of the society in various forms. तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा redistribution function। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। नाउ अंडर मैच द फॉलोइंग, total expenditure minus total receipts excluding borrowing. So we know total expenditure minus total receipts excluding borrowing is fiscal deficit. So A is 3. So let's see, A is 3 second. So पहले ही ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया कि A आंसर सेकंड आंसर है इसका। Okay, we know that second is the answer. We are very much sure. एक दो और चेक कर लेते हैं। B का 1, revenue expenditure minus revenue receipts is revenue deficit. So yes, answer is 2. Let's come to the third question. Interest receipts on account of loan by central government is an example of। अब इंटरेस्ट रिसिप्ट्स क्या हो गया? ना ही इससे कोई एसेट्स आपके कम हो रहे हैं, ना ही आप पे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऑन गवर्नमेंट। ओके, वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। So are they debt creating receipts? No. They are capital receipts? No, because neither the assets are reducing nor the liabilities are increasing for the government. Tax revenue, no, interest is not a form of tax. So it is non-tax revenue for the government. Answer is 1. Fourth, the labor which is sold and purchased against wages is referred to as। So labor क्या है? जो sold और purchase होती है against wages, so that will be wage labor। So clearly answer is 4. Let's go to fifth question. The consumer price index is the index of prices of a given basket of commodities which are bought by the representative consumer. Which of the following statement is not true about consumer price index? We are talking कि consumer price index से related कौन सी चीज true नहीं है, not true। So consumer price index is generally expressed in percentage terms। Percentage terms में होता है ये। Cost of purchase of the given basket is calculated in the base year as well as in the current year। Yes, PO P1 होता है P0 upon P1 into 100। Consumer price index does not include prices of imported goods। Weights are constant in consumer price index। So weights are constant, so answer will be 4, not include prices of the imported goods। The answer is fourth, that weights are constant. Weights are given to in the wholesale price index। Come to sixth question. Yeah, we are on sixth. In a government budget, primary deficit is 10,000 crore and interest payment is 8,000 crore। So government budget primary deficit plus interest rate will be 18,000। So that's fiscal deficit is 18,000 crore। Next comes seventh question। All right। कर लेते हैं। Yes। So now the question is GNP MP। GNP MP, if we want gross, so definitely we should have net this side। So GNP MP minus depreciation will be net, no। So B is 2. We can clearly see that B is related to 4. Sorry, B is 4. Gross minus dep will be net, and market price minus net indirect tax will be FC।
So GNPMP minus DEP minus NIT will be your NNPFC. तो B comes out as 4. So B हमारा 4 हो गया जो कि हमारा 1 और 4th पे आ रहा है मतलब आंसर शुड बी बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शंस. तो फर्स्ट और फोर हो गया. ए सेकंड ही दिया है तो हम सी को चेक कर लेते हैं. सी का थर्ड होगा या सी का वन होगा. सी का थर्ड इज GN minus NIT, so will be converted into FC. So no, C is not 3, C is 1 minus DEP, so you will get NDP MP. So answer is fourth. Answer is fourth here. Let's come to next question, that is question number 8. Value of the multiplier directly depends upon, it is directly depend on the consumption. जितना आप कंजम्पशन करोगे उतने मल्टीप्लाई होती है इकोनॉमी के अंदर इनकम. So therefore it is MPC, marginal propensity to consume. 3. Ninth question. Okay, yes, we are on ninth question. An unemployed person is the one who is not employed even for 1.5 hours in a day. Identified which of the following is not a source of data on unemployment. Report of Census of India, National Sample Survey Office's report of employment, annual report of periodic labor force. तो employment labor force तो clearly दिख रहा है कि employment का data होगा. और रिपोर्ट ऑफ सेंसस जो कंट्री के बारे में पूरा होता है वो हमारी कंट्री की हर चीज को बताता है. लास्ट इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं होगा. सो देयरफॉर आंसर विल बी फोर्थ ईयर. क्वेश्चन 10. मैच द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है. इस क्वेश्चन के अंदर फिर से रिदम बाजार लिखा है. रिदम बाजार नहीं होता है, रायतू बाजार होता है. सो रायतू बाजार इज आंध्र प्रदेश, वी क्लियरली नो. सो डी का हो गया हमारा 3. तो हम चेक कर लेते हैं डी का 3 कहां पर है, सेकंड पे है. सो क्लियरली आंसर इज 2. एक और चेक कर लेते हैं सी का 4, पुणे का हदसपर मंडी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आंसर इज हर 2. तो आपने देखा मैच द फॉलोइंग करने का तरीका. जिस एक पे आप श्योर हो उस एक को सबसे पहले चेक किया करो, फिर बाकी के ऑप्शंस को रीचेक करा करते हैं हम लोग. नेक्स्ट आता है इसमें हमारा 11th क्वेश्चन. India's health infrastructure is made up of three-tier system: primary, secondary, tertiary. The Indian system of medicine does not include, क्या include नहीं करता, naturopathy, allopathy, यूनानी, सिद्धा. So it does not include allopathy. आ जाएगा सेकंड आंसर हमारा. आते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन पर. If demand increases and supply decreases, the price will rise sharply. कुछ सोचना ही नहीं है. किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है बहुत ज्यादा और वो चीज अवेलेबल नहीं हो मार्केट के अंदर, उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइसेस विल राइज शार्पली. सो आंसर विल बी ए ओनली, दैट इज 1 ओनली. यहाँ पे अगेन इन्होंने ऑप्शंस में थोड़ी गलती करी है. 1 का ए ओनली लिख दिया है, यहाँ कहीं पे ए नहीं है, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 है यहाँ से, तो हम 1 मार्क कर लेते हैं कि राइज ओनली को, राइज शार्पली को मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा 13th क्वेश्चन. ओके, सो देर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन. फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड. सबसे पहले CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग विच इज बीइंग अपलोडेड बाय NTA, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है. तो ये आउट ऑफ सिलेबस है. ये पहले भी मॉक में जब हम लोगों ने पहले, आपने अगर मेरा मॉक देखा होगा तो उस मॉक में भी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था कॉस्ट से. ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज पुट कर दिया है. सो फिक्स्ड, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. करेक्ट. जो भी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उन पे खर्चा होता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है. बिकॉज इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन एट अ टाइम, देयर दीज कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड. ये करना ही पड़ता है. सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. सो आंसर इसका हमें पता है क्लियरली 1 है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको ध्यान रखना है. नाउ कम्स 14th क्वेश्चन. Which one of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Which one? रिलेटेड कमोडिटीज में इधर भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स. रिलेटेड गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, सब्सिट्यूट भी हो सकते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हमारा. तो आंसर हमारा 1 डेफिनेटली नहीं है. आंसर 2, 3 या 4 में से होगा. देखते हैं. If the demand for the main commodity decreases, demand of substitute commodity will also decrease.
सो डिमांड को आप डिमांड से कंपेयर नहीं कर सकते, आप प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी विद द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी कंपेयर होता है इसके अंदर। सो प्राइस ऑफ द मेन कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड, अगर यहाँ पे प्राइस होता तो हमारी कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिमांड वर्ड यूज करा हुआ है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Third statement, if the demand for the main commodity increases, demand for the substitute commodity will decrease. Again, demand statement. If demand for the main commodity decreases, demand for substitute commodity will increase. So second, third and fourth, तीनों statement गलत है. Okay, they are not correct. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे हम आंसर नहीं मार्क कर सकते क्या आंसर है। अगर ये लिखते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर इज करेक्ट लिखते और नॉट हटा देते तो आंसर वुड बी 1 ईयर, तो आंसर हो जाता हमारा यहाँ पे 1। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे अपने, क्योंकि यहाँ अभी भी मॉक एनटीए के मॉक पेपर में गलतियां हैं। Okay, so we have now assertion and reason question. Effective demand manifests itself in the spending of income. So effective demand जो है वो spending of income के बारे में बात कर रही है, because effective demand consists of desire of the product and resources to purchase the product. Obviously resource होना चाहिए product को purchase करने का, मतलब income होनी चाहिए, तभी तो आप spend करोगे. So both the statement are correct and our reason is the correct explanation of the assertion. So answer would be 1 here. Let's come to next question, 16th question. Choose the correct chronological order. Chronological order हमें select करना है। तो अगर मैं chronological order में यहाँ पे देखूं, प्लानिंग कमीशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लियर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियरली मालूम है कि लास्ट में हुआ था, सो लास्ट में डी आता है, तो डी में आता है हमारा सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, मतलब आंसर शुड बी बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ में से होगा। अब उसके बाद हमें मालूम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, सॉरी प्लानिंग कमीशन उससे पहले बना था, तो ई अगेन हमारा 2 और 4 में ही अटका हुआ है। अब हम देखते हैं इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया सबसे पहला हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, जो कि अराउंड 1853 के टाइम पे हुआ था। सो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सी, तो उससे क्लियर हो गया हमारा कि आंसर है सेकेंड। रेलवेज के बाद आया स्विस कैनाल, स्विस कैनाल के बाद आया फर्स्ट सेंसस हुआ हमारी कंट्री में, फिर प्लानिंग कमीशन बना, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। सो आंसर इज 2 ईयर। 17th question. Okay, so we are again on the match the following, एक और match the following आ गया। Now WTO is a World Trade Organization, facilitate rendering of reconstruction and development. Now reconstruction and development IBRD का full form है, so D का definitely 3 है, so D का definitely 3 है, और 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ में, मतलब आंसर क्लियरली फोर्थ हो गया। IMF क्या है, जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। RBI हो गया हमारा, जो फैसिलिटेट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एंड मल्टीलेटरल ट्रेड हमें हेल्प करता है WTO। सो आंसर पहले ही ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया था IBRD से कि फैसिलिटेट रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो डी का थर्ड था, डी का थर्ड एक में ही दिया हुआ है, सो आंसर विल बी 4 हियर क्लियरली। अगर एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी है, मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल मुझे पेपर का नहीं लगा है बिल्कुल भी। गलतियां हैं थोड़ी, 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगे हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस थोड़े लास्ट लास्ट में ज्यादा दिए हुए हैं, बट अगेन उसके क्वेश्चन इटसेल्फ आप आंसर कर सकते हैं जब हम लोग केस स्टडी पे जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अगेन असर्शन और रीजन क्वेश्चन आपके पास आया है। Every year, the government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises because disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखा करिए, assertion reason जब भी हमें करना होता है ना, तो हमेशा assertion और reason के बीच में है because को लगा के हमें रीड करना चाहिए। आंसर को हमेशा बिकॉज लगा के रीड करा करो, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिकॉज disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. So this statement, A statement is absolutely correct, but B statement is not correct. Okay? उनका ये मोटिव नहीं रहता कि अपनी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को डिस्कार्ड कर दें, इस मोटिव से नहीं वो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। हर बार रेवेन्यू जनरेशन होता है या इम्प्रूवमेंट होता है उनके अंदर,
बट डिस्कार्ड करना मोटिव नहीं होता है. सो वी कैन से दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट. ऑब्वियसली उन्हें मिलेगा बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. सो आंसर यहाँ पे 2 पे जा रहा है. ओके, नेक्स्ट आता है 19th क्वेश्चन. ओके सॉरी, आई हैव टू चेंज इट. ऑलराइट, तो आ गए हम अपने 19th क्वेश्चन पर. Again, assertion reason question. A major policy initiative, that is land reform and green revolution, helped India become self-sufficient in food grain production because the proportion of the people depending on agriculture did not decline as expected. क्या तो ये आंसर क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए assertion. सो आंसर यहाँ पे हो गया हमारा 2. बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. आते हैं 20th क्वेश्चन पर. ओके सो चाइना is the second largest GDP दिए हुए है 19.8 trillion, whereas India's GDP is $8.07 trillion and Pakistan's GDP is $0.94 trillion. Roughly about 12% of India's GDP. India's GDP is about 40% of China's GDP. India's GDP is around $7.13 trillion more than Pakistan's GDP. Dash and dash have been the reason behind the decline growth rate in the Pakistan. Pakistan के majorly growth rate reason क्या थे? Reform process and the political instability. पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है. Political instability एक one of the strong reason था उनका जिसकी वजह से पाकिस्तान की growth decline हुई. तो आंसर 1 हमारा क्लियरली हो गया. इसके साथ साथ रिफॉर्म प्रोसेस हो गए. नाउ कम्स 21 क्वेश्चन. तो मैच द फॉलोइंग करते हैं. कोटा क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड. राइट, ए का 1 हो गया. सो ए का 1 2 3 और 4 में हमें दिख रहा है तो आंसर 2 3 4 में से होगा. लैंड रिफॉर्म हो गया, इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सो बी का हो गया 3. बी का 3 हमें सेकंड और 3 में दिख रहा है तो 4 भी हमारा चला गया. तो अब हमारा आंसर हो गया सेकंड और 3 के बीच में. सी देखते हैं. एच वाई वी सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट. तो सी का हो गया 2, तो बचा हमारा 3. सो आंसर इज 3. ऑल राइट, नाउ कम्स आवर 22nd क्वेश्चन. So we have now 22nd question. The official data on poverty is made available to the public by dash on basis of consumption expenditure data collected by dash. Okay, so official data on poverty is made available to the public by. Public को कौन available कराएगी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका डेटे को हम पढ़ सकते हैं. तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, कलेक्टेड बाय. कलेक्ट कौन करेगा? उसे प्लानिंग कमीशन करेगा, जो कि अब नीति आयोग हो गया है. क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो पॉवर्टी के बारे में नहीं पता कर रहे हैं. हेल्थ प्रोफाइल के बारे में, अगेन पॉवर्टी के बारे में नहीं पता हो रहा है, वो हेल्थ के बारे में हो रहा है. तो मेनली प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है. तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है. हम लोग इजीली उसे यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स टू जनरल पब्लिक इट इज अवेलेबल बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज बीइंग कलेक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन previously, now नीति आयोग. So answer would be 1 here. Let's come to 23rd question. Which of the following is not a common goal of various 5-year plans in India? इसमें से कौन सा कॉमन गोल नहीं है 5-year प्लान? ओके, सो लेट मी सी. ओके, Harsh Kumar, if you all are writing the answers, I would suggest you to write a question number and then the answer. So that will be more benefit. Like Harsh Kumar, yes, you are mentioning the answer 4, 2, but it's quite difficult to understand this is for which question. Okay, keep up, dear. And now you all want to answer, so make sure you write the question number, put a dash, and then write 1, 2, 3, 4. Okay, all right. Now let's continue with the 23rd question. Which of the following was not a common goal? Okay, not a common goal. Common goal कौन सा नहीं है? So growth is a common goal. Industrialization, no, no, no. So answer clearly दिख रहा है कि it is 2. Okay.
ओके, सो यहाँ पे अभी इन लोगों ने जो डी ओनली, बी ओनली, ई ओनली करा है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमें ए बी सी डी ई नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं इसको मार्क, मैं टू, मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे टू मार्क किया है, बट यहाँ पे टू बोल रहा है बी ओनली, तो बी सेकेंड ही है तो बी ओनली होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। बट इस टाइप की ये अगेन थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं अभी एनटीए के क्वेश्चन में, स्टिल मिस्टेक्स थोड़ी कंटिन्यू है अभी भी। सेल्फ सफिशिएंसी यस, मॉडर्नाइजेशन यस, इक्विटी यस। सो ऑल फोर आर द मेजर गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान एक्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखे तो सेकंड पे, और सेकंड पे ए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सेकंड हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे टू मार्क करा है। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऊपर कहीं भी एबीसीडी नहीं दिया हुआ है, और नीचे ये लोग बी ओनली, डी ओनली, ई ओनली लिख रहे हैं। सो नाउ वी, हमें आंसर मालूम है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारा मेन फोकस है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आते हैं 24th क्वेश्चन पे। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, के आर वी राव, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस। Okay, who is the architect of the Indian planning? पीसी महालनोबिस। बिकॉज क्लियरली आपकी एनसीईआरटी बुक में भी अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग इज पीसी महालनोबिस। सो आंसर इज टू हियर। अगेन ये अगर पहले वाले मॉक पेपर को अगर देखेंगे ना, तो उससे काफी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ऑल राइट, नेक्स्ट कम 25th क्वेश्चन। Dash is defined with respect to a particular value or action and is equal to the value of foregone alternative choice or action. Foregone alternative choice and action हमें clearly बता रहा है कि आंसर हमारा opportunity cost है. So third is your answer. 26th question. An obligation of the banks to maintain a minimum proportion of the total deposit and reserves in liquid form as per the regulation of RBI is maintain मतलब खुद को अपने पास मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो होता है statutory liquidity ratio, that is SLR. So आंसर हो जाएगा थर्ड again here. 27th question. Decrease in CRR will lead to, जब कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज होगा मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, सो एग्रीगेट डिमांड भी आगे इंक्रीज हो जाएगा, सो देयर विल बी राइज इन द एग्रीगेट डिमांड. आंसर वुड बी टू हियर. 28th क्वेश्चन. प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो. प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो अगर दोनों की वैल्यू मान लो 10 है तो 10 माइनस 10 विल बी जीरो. दैट मीन्स व्हेन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द इंटरेस्ट पेमेंट, फर्स्ट ऑप्शन. सो आंसर इज 1. 29th question. Due to COVID-19, okay, so much detail is given. Again, trick क्या रहती है? पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है. अगर हमें लगता है हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, तो हम एक केस स्टडी को रीड करके देख लेते हैं. ओके, तृप्ति आंसर बच्चा ये आपने किसका दिया हुआ है, किस क्वेश्चन नंबर का है? आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू राइट क्वेश्चन नंबर एंड देन द आंसर. So if you will mention the question number also, that would be easier for me. All right. So next हम आते हैं, besides reduction in CRR and repo rate, what other measures can be taken by the government of India through budgetary policy to combat recession? Okay. Now budgetary policy के लिए हमें लेना है, budgetary policy लेना है और recession को beat करना है. तो बैंक रेट अगेन आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई. सेल्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब देखो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखा है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा. यहाँ पे ये मिस्टेक करी है उन्होंने, सेल्फ की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सेल होना चाहिए था. तो ठीक है, हम अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब एक पॉइंट आ गया कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नो, अगेन इट्स अ मॉनेटरी मेजर. इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगेन इट्स अ मॉनेटरी मेजर. सो फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड क्या होते हैं, वो होते हैं टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. तो डिक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यस, सो आंसर विल बी 4 हियर. आते हैं हम लोग 30th क्वेश्चन पे हमारे. नाउ 30th क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ महारत्न इज. अब इसमें से महारत्न का एग्जाम्पल कौन सा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यस. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, yes. Then we have Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited, no.
सो आंसर इसमें 1 2 3 तीनों ही हो गए महारत्न के। okay? तो अगर एग्जाम्पल होता व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ महारत्न, तो इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म आ जाता क्लियरली। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन। एक एक बेसिक एवरेज साइट पे जाए तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो सकता है, बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब भी महारत्न के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, सो वी कैन नॉट मार्क द आंसर हियर। आते हैं 31 क्वेश्चन पर। ओके, 29th 4 तृप्ति, वेरी गुड, यू आर मेंशनिंग 29 4। लेट मी चेक बच्चा। 29th 4th आंसर, yes, absolutely correct, 29th was 4th। 30th question, we have seen that it cannot be answered because other options we can see out of Maharathan। अगर लिखते हैं not a Maharathan तो definitely 4th हो जाता है इंडियन रेलवेज वाला। 31 पे आते हैं। वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई डैश विद एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो जब कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि मनी इकोनॉमी के अंदर कम मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो मतलब रिजर्व ज्यादा रखो और मनी कम क्रिएट करो। सो मनी मल्टीप्लायर वुड डिक्रीज, सो दैट विल बी 2 here। So answer is 2 here। Now comes 32 question। Average fixed cost. Again, it's a out of syllabus question. Cost chapter as per CUET नहीं है तुमको सिलेबस के अंदर। सिलेबस में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट्स मिले हैं वो फर्स्ट और सेकंड ही तुम लोग को मिले हुए हैं। कंज्यूमर बिहेवियर तक मिला हुआ है हमें, और दैट टू उसमें इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम नहीं है। हमें सिर्फ कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल अप्रोच है मेनली। ऑलराइट, 31 का आंसर आया 2। 31 का आंसर चेक कर लेते हैं। इट्स 2, वेरी गुड तृप्ति, आंसर इज 2। आते हैं हम 32 क्वेश्चन पर। 32 देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, अगेन एज आई टोल्ड यू दैट इट्स आउट ऑफ सिलेबस। सो ओके आशी, 31 is 2, एब्सोल्युटली करेक्ट आशी एंड तृप्ति। 32 देखते हैं अब। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, average fixed cost is goes on increasing with an increase in production, no, it goes on decreasing with the increase in the production in short run, absolutely correct। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कांस्टेंट, और आउटपुट कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो आप देखो अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 है और आउटपुट पहले 0 था तो 10 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट। सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। आते हैं 33 क्वेश्चन पर। If in an economy the consumption and saving curves are parallel to each other, the value of the multiplier will be, good question। जब consumption और saving curve are parallel to each other, इसका मतलब उनका slope equal है, they have a equal slope। और जब slope equal होता है इसका मतलब कि उनकी वैल्यू सेम हो गई, और हमें मालूम है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको लिख के कर लेते हैं। Now, consumption and saving curves are parallel to each other. When they are parallel, that means their slope is equal। और जब अगर slope equal हो जाता है, so that means MPC is equals to MPS। Marginal propensity to consume will be equals to marginal propensity to save। So, और इन दोनों का सम क्या होता है? MPC plus MPS is equals to 1 होता है, so that is 0.5 plus 0.5 equals to 1 हो जाएगा। फिर स्लोप इक्वल हो गया, और पुट करके देख लो। 1 अपॉन एमपीसी का फॉर्मूला लगा, 1 अपॉन एमपीएस लगा लेते हैं। So 10, that will be 2। So answer is 2, that is 3 here। Answer will be 3। Yeah. Yes, Tripti, will there be question out of the syllabus? If questions will be out of the syllabus, Tripti, then you will be awarded with the marks, because that is fault on their side, not your side। You have studied what they have given to you. We have worked hard since so long. So if they are giving the question out of the syllabus, students will be on the beneficial side. You will be awarded mark for that. So don't worry about that. Whatever the syllabus, you focus on that। All right. Now next is question number 34 पे आते हैं अब हम। Okay, so I'll go to 34 question।
Oops, what happened? Okay, it's 34. I have to erase this. I'll just erase. All right. In international trade, if the domestic price of some good is more than its price in the world, अब क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक गुड्स है उनका प्राइस ज्यादा है वर्ल्ड प्राइस के कंपैरिजन में। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो हमारे गुड्स महंगे हैं और जो बाहर के लोग बना रहे हैं उनके गुड्स सस्ते हैं। तो क्या होगा अगर मुझे मेरी कंट्री में महंगा मिलेगा तो आई वुड प्रेफर कि मैं दूसरी कंट्री से ले आऊं। और जब आप दूसरी कंट्री से कोई चीज खरीदते हो मतलब कि आप इंपोर्ट कर रहे हो। क्लियर? तो देखते हैं क्या होगा। द कंट्री विल बिकम द एक्सपोर्टर, नो। द कंट्री विल बिकम द इम्पोर्टर, यस। द कंट्री विल नीदर द इम्पोर्टर नॉर द एक्सपोर्ट, नो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, नो। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अगर हमारे गुड्स दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में महंगे हैं इसका मतलब हम प्रेफर करेंगे दूसरों से लेना, और दूसरों से लेना मतलब कि इंपोर्ट करना व्हेन वी टॉक अबाउट द टू कंट्रीज। सो आंसर विल बी बी ओनली, दैट इज वन। तो यहाँ पे बी ओनली। अब देखो यहाँ पर एबीसी जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ना, ऐसे पिछले क्वेश्चंस में नहीं था। तो जैसे बी ओनली लिखा है तो द कंट्री विल बिकम द इम्पोर्टर ऑफ द गुड्स, तो बी ओनली, यस, वन विल बी द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेशन। Give the consumption function, given the consumption function of an economy, you have the consumption function C equals to rupees 100 crore plus 0.8 Y. Y is income. The equilibrium level of income is rupees 800 crore. So you have 800 crore. The value of the two components of the consumption function when the economy is in equilibrium are dash and dash. So दो component होते हैं इसके अंदर, एक C होता है और एक C bar होता है। C bar 100 है clearly, तो सब में 100 दिया हुआ है। अब हमें देखना है सी कितना कैलकुलेट होता है अगर इक्विलिब्रियम लेवल हमारी 100 है तो इनकम। तो यहाँ पे 800 को हम पुट करके देख लेते हैं। इकोनॉमी 800, जब 800 को यहाँ पे पुट करते हैं तो ओके, पुट इफ यू वांट सो वी कैन सॉल्व आल्सो। तो या C is equals to C bar, that is 100 plus 0.8, 800. So 8 8 is 64, 8 8 is 64, 640 हो जाएगा बिकॉज वी हैव अ पॉइंट, 6400 पॉइंट लगेगा 640 प्लस 100, so that comes out to be 740. So answer is 2 here. All right, 100 and 740. 100 autonomous consumption, 740 is your consumption. 34 is 2 and Zora 35 is 2. Absolutely correct, Zora. 35 is 2. Tripti, let me check 34th question, bacha, as you are asking for 34th one. Okay, let me erase it. Zora, your answer is correct. We have seen that 35 is 2. Tripti, let's check your answer. You have mentioned for 34. Oh God. This technical thing, 34. Okay. 34, Tripti is mentioning 2, 2. B only. Tripti, bacha, there is confusion. You have marked 2 and 2 is A only. No, we will not be the exporter, we will be the importer because our goods are costlier. Look at the domestic price of some good is more than its price in the world. जब आपको वर्ल्ड में सस्ते मिल रहे हैं तो why you are going to buy from your country, you are going to buy from the other country. Okay? So that is why that will lead to as the exporter of a country. So our exporters will increase. Our country will have more of importers rather than exporters. एक बार फिर से लिख के समझना है इसको. Domestic price are high, which is more than the prices of the international market. Okay? इधर भी हाई है बट डोमेस्टिक प्राइसेस ज्यादा हाई है। सो व्हाट यू विल प्रेफर, यू विल प्रेफर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्ट? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रेफर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। और जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्रेफर करते हो मतलब आप डिमांड कर रहे हो बाहर के गुड्स को, जिसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। मतलब द कंट्री विल बिकम द इम्पोर्टर ऑफ अ कंट्री। सो आंसर वुड बी 2 हियर। सो दैट्स 34। अब इसको करते हैं इरेज। 35 क्वेश्चन हमारा हो गया है। नाउ वील कम टू 36 क्वेश्चन। लेट्स कम टू 36 क्वेश्चन।
Okay, now we have statement. There are two statements given. For every 100%, about 35 are the workers in India. So from every 100, we have 35 workers in India. Compared to females, more males are found to be working. The difference in the participation rate is very large in urban areas. Now here, both the statement are correct individually, but they are not connected to each other. It's not a reason. So what we can say that both statement 1 and 2 are true. So both statement 1 and 2 are true. So answer is 1 here. 36th question. Now come to 37th question. A data is given to you. Again, it's a mock previous question only. Annual growth rate is given to you. Sex ratio is given to you. Okay, sex ratio out of every 1,000 male, we have just 94, 924 girls, and in China, they have 949 girls. So the preference of the sons prevailing in both of the countries. Okay, पहले में क्या मिस्टेक करी थी, सन लिख दिया था उन्होंने, SUN करा था. तो अगर आप मेरा पहले वाला मॉक देखेंगे तो उसमें आंसर क्लियरली मार्क नहीं था, बट यहाँ पे SON लिखा हुआ है. प्रिवेलिंग इन बोथ द कंट्रीज हैज डायरेक्टली रिजल्टेड इन द लो सेक्स रेशियो इन द ईयर, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे ऐसे क्लियर नहीं हो रही है, फर्टिलिटी रेट क्लियर नहीं हो रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट क्लियर नहीं हो रही है. एनुअल ग्रोथ रेट क्योंकि कंपैरिजन नहीं करा हुआ है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि वो लो हुआ है, कि वो ज्यादा हुआ है, कि कम हुआ है. बट सेक्स रेशियो में क्लियरली दिख रहा है कि 1,000 मेल्स में 924 गर्ल्स एंड 949 गर्ल्स, दैट मीन्स देयर इज लो सेक्स रेशियो. सो आंसर इज 2 हियर. आते हैं 38th क्वेश्चन पर. द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट मतलब व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स. एज अ परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट मतलब कि फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स होती है गवर्नमेंट की, तो बोरोइंग्स का ज्यादा पोर्शन जो गवर्नमेंट ने उधार लिया हुआ है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर रहा है. और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, नीदर दे क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट नॉर दे रिड्यूस लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट. Points to deterioration in the quality of government expenditure involving lower capital formation. मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सही जगह पे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोअर कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी लोअर हो रहा है. सो आंसर वुड बी 1 हियर. ओके, सो 36 का आंसर दिया था 1 जोरा ने. ऑल राइट जोरा, नाउ वी आर ऑन 39th क्वेश्चन. वी आर स्टार्टिंग विद 39th क्वेश्चन. इफ इन केस ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू हैव एनी कॉन्सेप्ट्स डाउट, कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी आप छोटे छोटे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. नो हार्म इन दैट, इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली. द गिफ्ट फ्रॉम फॉरेनर्स इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब आपको गिफ्ट मिल रहा है, सबसे पहले तो ट्रांसफर इनकम है, यूनिलेटरल इनकम ट्रांसफर्स है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहाँ पे आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं. सो आंसर वुड बी 1 और 2 के बीच में होगा. और डेबिट साइड होगा कि क्रेडिट साइड होगा, ये कैसे पहचानते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो आपको मिल रहा है ये पैसा, सो देयरफॉर आंसर वुड बी 1 हियर. ऑल राइट, 39 का 1 हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट. एब्सोल्युटली जोरा, इट्स करेक्ट. अदर्स ऑल्सो कीप ऑन इन्वॉल्विंग, कीप आंसरिंग, एंड आई होप यू आर सॉल्विंग विद मी. और अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है, डू आस्क द क्वेश्चन. नाउ 40th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल. इसमें से हमें स्टॉक पहचानना है. प्रॉफिट है, इन्वेंट्री है, इनकम है, या आउटपुट है. प्रॉफिट, इनकम एंड आउटपुट एनुअली होते हैं या क्वार्टरली हम कैलकुलेट करते हैं. इन्वेंट्री इज अ स्टॉक विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सो आंसर वुड बी 2 हियर. आंसर हो जाएगा 2. नाउ वील कम टू द क्वेश्चन नंबर 41. जस्ट 10 मोर क्वेश्चंस टू गो. अब लास्ट के 10 क्वेश्चंस में उन्होंने क्या करा है, एक दे हैव चोजन 2 केस स्टडीज, 2 केस स्टडी ले ली है, और एक केस स्टडी पे 5 क्वेश्चंस है, दूसरी केस स्टडी पे 5 क्वेश्चंस है. तो इस तरीके से दे हैव मेड देयर 10 क्वेश्चंस, लास्ट 10 क्वेश्चंस. और अगर आपको लास्ट अगर मॉक टेस्ट याद होगा, एनटीए का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पहले मॉक टेस्ट का जिसमें एनटीए ने मिस्टेक्स करी थी बहुत सारी, तो उसमें लास्ट के क्वेश्चंस में उन्होंने डाले ही नहीं थे, क्वेश्चंस डालने ही भूल गए थे. नाउ दे हैव चोजन 2 केस स्टडी, 5 क्वेश्चंस फॉर ईच केस स्टडी.
ओके वेरी गुड नाउ वी आर ऑन 40th क्वेश्चन नाउ व्हाट इज द ट्रिक हियर अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस पूरे केस स्टडी को क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होगा उस टाइम लिमिटेड टाइम होगा हमारे पास उस लिमिटेड टाइम में हम इसको इतना नहीं पढ़ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो अगर क्वेश्चन से आंसर नहीं समझ आता है तो फिर हम ऊपर जाके इंफॉर्मेशन लेंगे ये तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं सो क्वेश्चन इज which among the following is true about the WTO WTO के लिए क्या चीज ट्रू है nations can place arbitrary restrictions on trade क्या आप restrictions लगा सकते हो ट्रेड पे तो WTO का फिर फायदा क्या होगा so no it's not correct covers trade in goods as well as services this is absolutely true गुड क्योंकि पहले गैट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड जो गैट ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ गुड्स पे वर्क करती थी और गैट को ही फिर आगे अपडेट करके डब्ल्यूटीओ बनाया था जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करती है सो सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रिमूवल ऑफ ओनली टेरिफ एंड नॉट नॉन टेरिफ नो हर तरीके के बैरियर हटाती है वो प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू डेवलप्ड एंड डेवलप नॉट टू द डेवलपिंग कंट्री नो वो बायस नहीं होती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर हाय डियर ओके सो वील कम टू 42 क्वेश्चन अगेन वील रीड द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता तो हम ऊपर केस स्टडी पढ़ेंगे developing countries feel cheated by the WTO. The reason is उन्हें feel cheated होता है वो करती नहीं है bias but we feel cheated by they are forced to open their market for developed countries. Yes, उनको फोर्स एक तरीके से किया जाता है कि डेवलप कंट्रीज के लिए दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू द मार्केट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यस हम लोग को इतना इजीली अलाउ नहीं होता है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे हमको लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं अप्रूवल से क्रॉस होना पड़ता है इतना इजीली हम लोग उनके मार्केट में नहीं जा सकते हैं जितना इजीली वो हमारे मार्केट में आ सकते हैं ऑप्शन वन इज ट्रू option 1 and 2 are true so I feel fourth is the answer where option 1 and 2 both are correct so answer will be 4 here और केस स्टडी को जब इसमें रीड करोगे तो क्लियरली दिख जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा पक्का इफ आई एम नॉट रॉन्ग tariff barrier interest developing import reducing some of the yeah look here it's there some scholars question the usefulness of India being a member of WTO as a major volume of international trade occurs among the developed nations. They also say that while developed countries file complaint over agriculture subsidies given to other countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their market for developed countries but not allowed to access to the market of the developed countries. So answer हमें clearly उसमें समझ आ रहा था कि 4 था ये रीड करने की हमें जरूरत नहीं थी ओके CUET प्रणव क्या कहना चाह रहे हो बेटा ये सीयूईटी क्या है ये सीयूईटी की प्रैक्टिस चल रही है डोमेन इकोनॉमिक्स की जागो जागो मोहन प्यारे ओके सो नाउ given below are the two statement one is labeled as assertion and other is reason अगेन क्या ट्रिक याद करनी है assertion reason को हमेशा because लगा के रीड करना चाहिए as an important member of WTO, India has been at the forefront of framing fair global rules, regulations, and safeguard and advocating the interest of the developed world. Absolutely correct. हम लोग हमेशा fair means use करते हैं एक active member है हम लोग WTO के because India's share in international trade is large enough that it can affect the decision making in WTO. No, this statement is not correct. हमारा share है, but we cannot affect the decision making of the WTO. So this statement, so A is true, but R is false. So A is true, A is correct, and R is not correct. So answer would be 3 here. All right. Next, we come to 44th question. We are about to finish. We are on 44th question. The purpose of WTO is to. Purpose क्या है? Place restrictions on trade? No, क्योंकि वो free trade पे believe करते हैं. Establish rules based trading regime? Yes. Rules based trading regime होनी चाहिए. Certain rules के base पे trade होना चाहिए. Facilitate only bilateral trade? Bilateral मतलब दो country के बीच में trade? No. Enlarge production and trade of goods only? No. Services भी होते हैं. So answer would be 2 here.
45th question. The WTO was founded in the year 1995 as the successor organization to the GATT. मैंने भी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स. GATT सर्विसेज पे वर्क करता था एंड WTO गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे वर्क करता है. 46 क्वेश्चन. अब जैसे मैंने आपको बोला था, एक केस स्टडी ली, उससे 5 क्वेश्चंस बनाए हैं. अब ये सेकंड केस स्टडी आपकी और इससे रिमेनिंग आपके 5 क्वेश्चंस है. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव, अगेन हम पहले ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ढंग से आंसर नहीं समझ आएगा तो ऊपर थ्योरी को रीड करेंगे. डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड इन इंडिया. डेट मैनेजमेंट क्यों चाहिए होता है? टू मेक मोर एक्सपेंडिचर सो दैट फिस्कल डेफिसिट शुड इंक्रीज इन द फ्यूचर, to contract current fiscal deficit and to reduce it further in the future, to improve tax collection in the future. Option 1 and 3. So answer जो होगा वो option 1 and 3 होगा. यहाँ पे अगर डाउट होता है आपको तो इसको एक बार हम रीड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मालूम है कि 1 and 3 they make more expenditure so that fiscal deficit could increase in the future, to improve tax collection in the future. ये एक ऑप्शन रहता है कि थर्ड की टैक्स कलेक्शन का मोटिव रहता है. टू कॉन्ट्रैक्ट करंट फिस्कल डेफिसिट एंड टू रिड्यूस इट फर्दर इन द फ्यूचर. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हम रीड करके देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं व्हाट दे आर एग्जैक्टली सेम. सो नाउ रीड द पैसेज, और इसी पैसेज के बेस पे हमारे आगे के 5 क्वेश्चंस होंगे. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड the ninth edition of the status paper on the government debt. Okay, so ninth edition आया government debt का. It contains debt management strategy DMS of the central government for the financial year of 2019, 20, 21, 22, which guides the borrowing plan of the government. क्या बता रहा है? borrowing plan बता रहा है कि कैसे borrowing लेनी है. तो कैसे borrowing लेनी है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे आते हैं मार्क करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेते हैं. टू गाइड द बोरोइंग प्लान्स ऑफ द कंट्री. तो जब आप बोरोइंग प्लान्स को गाइड कर रहे हो, मतलब चाहते हो कि आप आगे बोरोइंग लोगे, सो शुड इंक्रीज इन द फ्यूचर, फिस्कल डेफिसिट शुड इंक्रीज इन द फ्यूचर पे बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज the objective of the DMS is to ensure that government's financing requirement and payment obligations are met at the lower possible cost. तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो लोअर कॉस्ट पे मिले, क्योंकि यही प्लानिंग है कि लोन तो लेना है बट लोअर कॉस्ट पे लेना है. तो फिस्कल डेफिसिट आपका इंक्रीज हो रहा है. Significance of managing government debt. The level of the government debt affects investors' confidence. जब आप बहुत ज्यादा लोन लेते हो तो आपका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है. Impact fiscal capabilities of the government and leads to crowding out effect on the private sector. क्योंकि गवर्नमेंट इतना लोन ले लेती है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कम मनी बचता है इन्वेस्ट करने के लिए. Fiscal repression of the commercial banks alongside other impacts like inflationary pressure, महंगाई, exchange rate issues आते हैं और higher taxes in the future हो जाते हैं. तो higher taxes की वजह से to improve tax collection in the future. तो ऑब्वियसली अगर हायर टैक्सेस होंगे तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगा उनका. सो आंसर यहाँ पे आता है ऑप्शन 1 and 3. तो आंसर हो जाता है यहाँ पे 4. राइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 47th क्वेश्चन पर. ओके, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. तो अब हमने पढ़ लिया है, आई एम सो सॉरी. सेवेंथ क्वेश्चन. गवर्नमेंट डेट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? इंटरनल डेट्स ओनली, एक्सटर्नल डेट्स ओनली, अदर बोरिंग्स, लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अदर बोरिंग. आंसर क्लियरली फोर्थ है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. हर टाइप की बोरिंग गवर्नमेंट डेट के अंदर आ जाती है, कहीं से भी लोन ले रही है गवर्नमेंट. कम्स 48th क्वेश्चन. फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट डेट. इट इनवाइट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. यस, ऊपर ही लिखा हुआ था that other impacts आते हैं, inflationary pressure आता है. It discourages private investment. Yes, it discourages private investment क्योंकि crowding out effect आता है. crowding out effect मतलब कि गवर्नमेंट ने इतना लोन ले लिया है कि प्राइवेट लोगों के पास पैसा कम पड़ गया है. The current generation has to bear the burden of the tax for repayment of the government debt. It depreciates the domestic currency. Exchange rate issues आ सकते हैं.
ना यहाँ पे आंसर अगेन 4 आता है. इट करंट जनरेशन हैज टू बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स फॉर रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डेट. आंसर यहाँ पे 3 और 4 में से चेंज हो रहा है. और डेप्रिशिएट्स द डोमेस्टिक करेंसी. एक्सचेंज रेट इश्यूज आते हैं तो इसलिए डेप्रिशिएट्स करेंसी को कर सकता है. कैसे करेगा देखो, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेती है तो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना मनी वापस ले जाने लगेंगे. इसका मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारी कंट्री में कम होने लगेगी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी. तो आंसर आता है हमारा 3 पर. इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द करंट डेप्ट. सो करंट जनरेशन हैज टू बेयर, कि बेयर करना ही पड़ेगा. नो मे बी वो मनी जो लिया है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो इनकम जनरेट होगी और उससे गवर्नमेंट भी पे कर सकती है. जरूरी नहीं कि वो बर्डन लोगों पे ही शिफ्ट होएगा. All right, so we go with the third option. Okay, so lastly we have 49th question. Second last question, I'm so sorry. Identify the objective that the government wants to fulfill by the DMS, debt management system. The government seeks to borrow at a lower interest rate. Yes, ऊपर था कि cost कम रहेगा, lower possible cost रहेगी. Lend internationally at lower interest rate, reduce the public investment in an economy, create inflationary pressure, identify the objective. Okay, so create inflationary pressure. क्या वो गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहेगी इन्फ्लेशनरी प्रेशर? रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, lend internationally, identify the objective that government wants to fulfill. Okay, so to borrow at the lower interest rate, one is the answer clearly. क्योंकि दूसरे वो इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करना चाहेगी, वो क्यों पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम करेगी? क्योंकि वो बोरो तो कर ही इसलिए रहे हैं ना ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके. और लेंड इंटरनेशनली एट लोअर इंटरेस्ट रेट, हाँ कोशिश करेंगे कि वो मनी को लेंड करे एट इंटरेस्ट रेट. सो ऑब्जेक्ट टू बोरो, अब मेन मैनेजमेंट सिस्टम में वो अपनी कंट्री के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. सो आंसर वुड बी टू बोरो एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है टू मेट एट द लोअर पॉसिबल cost. So answer is clearly 1. Now we come to last question. Identify which of the following is not an impact of government debt. किससे क्या नहीं हो रहा है? एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, फिस्कल रिप्रेशन होता है, रिड्यूस टैक्सेस नहीं होता है. क्योंकि टैक्सेस, लास्ट लाइन लिखी है हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर, तो टैक्स रिड्यूस नहीं होते हैं, यहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्कुल होता है. सो आंसर विल बी 3 हियर. With that, we end our test, the mock test. Do revise एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़ना इंडियन इकोनॉमी की, और जो माइक्रो और मैक्रो का जो सिलेबस है, जो आपका 12th का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसी को रिकॉल करना. कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. कुछ ही दिन बचे हैं. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू.